Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the NCERT exercise questions 26 to 23 of the solutions chapter for class 12 CBSE and ISE. First question we have is, if the density of some lake water is 1.25 grams per mole and contains 92 grams of Na plus ions per kg of water, calculate the molality of Na plus ions in the lake. एक वाटर सैंपल फ्रॉम अ लेक में 1.25 ग्राम्स इन्वर्स इसकी डेंसिटी है, 92 ग्राम्स ऑफ Na प्लस आयंस पर के जी मिलते हैं, तो उस लेक में मोलैलिटी ऑफ Na प्लस कितना होगा ये निकालना है. मोलर मास ऑफ Na प्लस इक्वल्स टू 23 ग्राम्स पर मोल. Number of moles of Na plus present equals to 22 upon 23 equals to 4 moles. Molality equals to 4 into 1000 upon 1000. यानी कि mass of moles of solute upon mass of solvent in kg into 1000. 4 into 1000 upon 1000 equals to 4m. तो 4 मोलर इसका मोलर जो है होगा आंसर. Next question we have is, if the solubility product of copper sulfide is 6 into 10 power of minus 16, calculate the maximum molarity of COS aqueous solution. Maximum molarity निकालनी है और solubility product दिया हुआ है. तो solubility product S minus equals to KSP equals to 6 into 10 power of minus 16 given. Maximum molarity of COS is aqueous solution means solubility of COS. Let the solubility of COS be S mole per liter. Then KSP equals to Cu2 plus into S2 minus, दो आयंस है S2 माइनस आयन और Cu2 प्लस आयन. तो S2 माइनस के लिए KSP दिया हुआ है 6 into 10 minus 16 is equals to S square S into S minus S square. यहाँ से S आ जाएगा अंडर रूट 6 into 10 minus 16 because 2.45 into 10 minus 8 मोल लीटर बस. एस स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, एस निकालना था, रूट में ले लिया तो आंसर आ गया 2.45 into 10 power of minus 8 मोल पर लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 एंड एसीटोनाइट्राइल CH3CN when 6.5 grams of C9H8O4 is dissolved in 450 grams of CH3CN. मास परसेंटेज निकाला है, 450 ग्राम में ग्राम CH3CN में 6.5 grams of C9H8O4 डिसॉल्व किया गया. 6.5 grams of C9H8O4 is dissolved in 450 grams of CH3CN. Then total mass of solution is 6.5 plus 450 equals to 456.5 grams. Therefore, mass percentage of C9H8O4 is 6.5 upon 456.5 into 100% equals to 1.424%. नॉर्मल था, मास परसेंटेज निकालना था, मास ऑफ द कंपोनेंट इसका निकालना है अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देंगे 1.424 का आंसर. नेफ्थिलीन C19H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of the narcolepsine generally is given as 1 point. Narofine used is 1.5 mg. Calculate the mass of 1.5 into 10 power of minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. मास निकालना है 1.5 into 10 power of minus 3 molar aqueous solution का. कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ नैलोरफिन इज निकाल लेंगे 6 into 19 plus 21 into 1 plus 14 into 14 plus 3 into 16, तो 311 grams per mole आ गया. In 1.5 into 10 minus 3 molar aqueous solution of nalorphine, 1.5 into 10 minus 3 into 311 because 1 kg of water contains 1.5 into 10 minus 3 molar. तो टोटल कितना होगा 311 ग्राम पे 0.4665 grams. Therefore, total mass of solution given is 1000 plus 0.4665 grams equals to 1000.4665 grams. This implies that the mass of the solution containing 0.4665 grams of
Nalorphine is 1000.4665 grams. Therefore, mass of solution containing 1.5 grams of nalorphine is, अब हमें तो 1.5 ग्राम के लिए निकालना था, तो 0.446 के लिए अगर 1000 है तो 1.5 के लिए कितना होगा मिलीग्राम्स ऑफ 1000.4665 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ जो ये मिलीग्राम में है अपॉन 0.4665 ग्राम्स इक्वल्स टू 3.22 ग्राम्स. तो 3.22 ग्राम्स ऑफ नॉर्फिन इज प्रेजेंट. फिर से देखते हैं एक बार. हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 311 ग्राम पर मोल. ठीक, 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वा सोल्यूशन है तो उस इंटू 311 कर देंगे. 1 kg में आया 0.4665 ग्राम्स. अब 1 kg में 0.4665 ग्राम्स था तो सोल्यूशन का मास हो गया 1000.4665. लेकिन हमें निकालना है फॉर 1.5 mg. तो क्या करेंगे 1000.4665 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ mg में अपॉन 0.4665 ग्राम्स इक्वल्स टू 3.22 ग्राम्स. 3.22 ग्राम्स ऑफ mass of nalorphine is present. Next question is, calculate the amount of benzoic acid C6H5COOH required for preparing 250 ml of 0.1 molar solution in methanol. कितना benzoic acid required होगा to prepare 250 ml of 0.1 molar solution of methanol. 0.15 molar solution of benzoic acid in methanol means 1000 ml of solution contains 0.15 moles of benzoic acid. 1.15 into 250 upon 1000. Therefore, 250 ml of solution contains benzoic acid equals to 0.0375. इसको सॉल्व कर लें. Molar mass of benzoic acid is 122. Hence, the required benzoic acid is 0.0375 into 122 gram per mole equals to 4.575. सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा. 0.15 मोलर सोल्यूशन का मतलब है 250 ग्राम्स ml में, तो 0.15 इंटू 250 अपॉन 1000. यहाँ से निकालिए 0.0375 ऑफ बेंजोइक एसिड. लेकिन हमको बोला गया कि कितना डाल, तो 122 उसका मॉलिक्यूलर मास है बेंजोइक एसिड का, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे आंसर आ जाएगा. क्योंकि ग्राम में निकाला 4.575 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the given order. Explain briefly. Depression in the freezing point of water बढ़ता जाता है in case of the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid. इसको एक्सप्लेन करना ऐसा क्यों होता है. तीनों सॉल्यूशंस के हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए. एसिटिक एसिड का ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. अमंग HCl and F, hydrogen, chlorine and fluorine, hydrogen is least electronegative while fluorine is the most electronegative. Then fluorine can withdraw the electrons towards itself more than chlorine and hydrogen. Thus trifluoroacetic acid is easily lose H plus ions, that is trifluoroacetic acid ionizes to the largest extent. अब क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आयंस बहुत जल्दी लूज़ करेगा, इसलिए बहुत जल्दी आयनाइज हो जाता है. सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन फ्लोरो केस में होगा. नाउ द मोर आयंस प्रोड्यूस्ड ग्रेटर द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा होगा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. Hence, depression in the freezing point in cases in the order सबसे ज़्यादा होगा in case of trifluoroacetic acid, उससे कम ट्राइक्लोरो में और सबसे कम एसिटिक एसिड में. Next question is, calculate the depression in the freezing point of water when 10 grams of CH3CH2CH ClCOOH is added to 250 grams of water. Ka given है 1.4 into 10⁻³ and Kf given है 1.86 Kelvin kg molar mass. Molar mass of CH3CH2CH ClCOOH कैलकुलेट कर लेंगे मोलिकुलर मास से, आ जाएगा 122.5 grams per mole. 10 grams of CH3COOH 10 upon 1.25 grams per mole. 10 grams of the compound is added
step 2, which is equal to 0.0816 mole. अब 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड एडेड टू 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो मोलैलिटी हो जाएगी 0.0186 अपॉन 250 into 1000 इक्वल्स टू 0.3264 मोल पर kg. Let alpha be the degree of dissociation for CH3, CH2, CH, Cl, COOH. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करने के लिए कैसे करेंगे, पहले C मोल था और आयनाइज नहीं हुआ था तो 0 थे ऑन द अदर साइड. एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 माइनस अल्फा जितना आयनाइज हुआ, और दोनों कंपाउंड बनेंगे कितना, दोनों आयन्स C अल्फा इंटू दोनों C अल्फा हो जाएंगे. तो K A इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा, विच इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अब K A यहाँ से निकाल लेंगे, C अल्फा नीचे वाला क्योंकि बहुत स्मॉल है तो उसको इग्नोर कर देंगे, तो K A इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर आ जाता है यहाँ से. अब K A इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट K A अपॉन C, जहाँ पे K A हमको पता है, C हमने निकाल लिया था कंसनट्रेशन. दोनों सॉल्व कर देंगे, 0.0655 आ गया. अगेन दोबारा देख लेंगे इसी चीज़ को एक बार फिर से. यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि पहले इनिशियल 1 मोल था और दोनों कंसनट्रेशन नहीं थे, 1 माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम पे हुआ तो अल्फा फॉर्म हो गए. टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा विच इज 1 प्लस अल्फा. अब आई क्या होता है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 विच इज 1 प्लस अल्फा. तो 1 प्लस अल्फा निकालिए 0.0655, 1 प्लस अल्फा कर देंगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 1.0655. यहाँ से हमने आई निकाल लिया. अब वेंट ऑफ फैक्टर, अब आई निकालेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के एफ एम. डेल्टा टी एफ पता है 1, डेल्टा टी एफ निकालना है, आई पता है 1.0655, के एफ मालूम है 1.86 क्वेश्चन में दिया हुआ था, और मोलैलिटी निकाल दी 0.3264. सॉल्व कर देंगे 0.65 केल्विन का डिप्रेशन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19.5 grams of CH2 FCOOH is dissolved in 500 grams of water. The depression and freezing point of water is observed to be 1 degree centigrade. Calculate the Vent-Off factor and the dissociation constant of fluoroacetic acid. Dissociation constant निकालना है और Vent-Off factor निकालना है, just like the previous question. Similar question है, W1 given 500 grams, W2 19.5, solvent 500 grams, solute 19.5 grams है. Kf equals to 1.86 for the same, and delta Tf equals to 1. Now we know that M2 equals to Kf into W2 into 1000 upon delta Tf into W1. Values given है सब, तो M2 निकाल लेंगे 72.54. Therefore observed molar mass of CH2FCOOH is 72.54 grams per mole. The calculated molar mass, लेकिन होता कितना है मोलर मास एक्चुअली में, तो मोलिकुलर मास से निकाल लेंगे, वो आगे 78. अब कैलकुलेटेड इज समथिंग एल्स और ऑब्जर्व्ड इज समथिंग एल्स, डिफरेंस है. तो यहाँ से हम पहले पॉइंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, आई इक्वल्स टू M2 कैलकुलेटेड अपॉन M2 ऑब्जर्व्ड, तो 78 अपॉन 72.54 विच इज़ 1.075. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगेन सेम चीज़ करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा पता था, इस बार अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1, तो 0.0753 यहाँ से आई आ गया. तो के ए को मालूम है, कैसे निकालते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ आयंस ऑन द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैल्यूज़ पता है 19.5 अपॉन 78 अपॉन 500 इंटू 1000, तो कंसनट्रेशन आ जाएगा 0.5 मोलर. अब के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है 0.5 इंटू अल्फा 0.0753 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0753. सॉल्व कर लेंगे 3.07 इंटू 10⁻³ यहाँ से के ए निकल आया. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो.